نے کہا الآن یا عمر کہ اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ذرا سوچئے ایک صحابی اگر یہ کہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو اللہ کے نبی یہ کہے کہ تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تو ہم اور آپ آج کہاں پر ہیں اور کس طرح اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے آئیے، انسان نا دنیا کے اندر سب سے زیادہ 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنے چیزوں سے؟ 8 چیزوں سے۔ میں سب کوئی، مولوی ہو، حاجی ہو، ڈاکٹر ہو، سب دنیا کا ہر انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ، عورتوں کو بھی شامل کر لیجئے، سب 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ 8 چیزوں سے۔ اب وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ ان 8 چیزوں کا ذکر کیا، اور آپ کو معلوم ہے صرف اور صرف ان 8 چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی خطرناک وارننگ دی، بڑی خطرناک وارننگ دی۔ اب اچھا وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ آئیے قرآن کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا ذکر کر دیا۔ وہ دنیا والوں سنو، قل ہے نبی آپ بتا دیجئے، قل ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، پہلی چیز باپ، قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم، اگر تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، واخوانکم، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، واخوانکم، اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وازواجکم، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، وعشیرتکم، اگر تم اپنے پڑوسی سے، اگر تم اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنی برادری سے محبت کرتے ہو، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها، اور اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو، جو مال تم بڑی محنت اور مشقت اٹھا کر کماتے ہو، وتجارة تخشون كسادها، اور اگر تم اس بزنس سے محبت کرتے ہو جس کے گھاٹا ہونے پر، جس کے مندہ ہونے کے لیے ہونے پر تم ڈرتے ہو تاکہ مندہ نہ پڑ جائے، گھاٹا نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے اس گھر سے محبت کرتے ہو، کس گھر؟ جو گھر تم نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ بنایا۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ باپ سے، بیٹا سے، بھائی سے، بیوی سے، مال سے، 5 چیزیں ہو گئی۔ بزنس سے کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہے۔ اچھا 6 چیزیں ہو گئی، اور اس گھر سے 8 چیزوں کا ہونا ہے میرے بھائی۔ اچھا باپ سے، بیٹا سے، اولاد سے، بھائی سے، خاندان سے، بیوی سے، مال سے، اور بزنس سے، اور اس گھر سے، 8 چیزیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کرو، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا۔ آگے کہتا ہے اور لوگوں سنو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ ان 8 چیزوں میں سے جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، ان 8 چیزوں میں سے اگر یہ 8 چیز یا ان میں سے اگر کوئی ایک چیز کی محبت اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے اوپر اگر غالب آ جائے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اگر ان سے محبت تمہاری ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، او اللہ کے بندو سنو، اللہ فرماتا ہے تو پھر تم لوگ میرے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ نے کلیئر کر دیا اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ سے اور رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر تمہارے اندر زیادہ ہو جائے تو اللہ کے کسی عذاب کے آنے کا تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، آئے گا۔
किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में अल्लाह तबारक व ताला का अजाब तुम्हारे ऊपर किसी भी टाइम, किसी भी वक्त आ सकता है। मेरे भाइयों, कुरान की इस आयत को पढ़ो और दुनिया के अंदर आज जो मुसलमानों के हालात है, पूरी दुनिया के अंदर आज जो मुसलमानों की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को सामने रखिए तो सिर्फ साफ जाहिर हो जाता है कि अल्लाह तबारक व ताला का अजाब हमारे ऊपर आता रहता है। 8 चीजों का जिक्र, लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा हो रहा है। 8 चीजों को मैं खोल खोल कर आज आप लोगों के सामने बयान करूंगा इंशाअल्लाह। एक सवाल पैदा होता है, मौलाना साहब एक बात बताइए, क्या बाप से मोहब्बत ना करें? देखिए गौर कीजिए, सामने में बात मत करिए भाई। आप लोग जो आना जाना करते बंद कर दीजिए ना, रास्ता डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, एक सवाल पैदा हो रहा है, अच्छा मौलाना साहब क्या बाप से मोहब्बत ना करो, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो? नहीं मेरे भाई, इस्लाम कब कहा कि आप बाप से मोहब्बत मत कीजिए? अरे आप बाप से मोहब्बत कीजिए, इस्लाम भी तो कह रहा है ना कि आप बाप से मोहब्बत कीजिए। बाप से मोहब्बत करने के लिए इस्लाम आपको मना नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा। अब उस बाप से क्यों ना मोहब्बत करूं जो बाप अपने बच्चे की परवरिश के खातिर खून पसीना एक कर देता हो, जो बाप अपना बच्चा को अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए खुद कभी अच्छा कपड़ा ना पहना हो, जो बाप बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए, उनका फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए वो बाप कड़कती हुई धूप में 100 रुपया के लिए, 200 रुपया के लिए टोटो चलाता हो, कहीं पे जाके मजदूरी का काम करता हो, कीचड़ उछालता हो, वो बाप जो अपना खून पसीना की कमाई से अपने बच्चे की परवरिश करता हो, उस बाप से मोहब्बत ना करो मेरे भाइयों, उस बाप से मोहब्बत कीजिए। यकीनन इस्लाम के अंदर बाप का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है इस्लाम के अंदर बाप का, लेकिन यहां पे बयान करने का मतलब कुछ और ही है। लेकिन हाँ, एक वाकया मुझे याद आ गया बाप के ताल्लुक से। बाप से मोहब्बत कीजिए। आज से तकरीबन बात मत कीजिए आपस में, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत तब से। एक वाकया याद आ गया, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब मैं दिल्ली जामिया में पढ़ता था, तो पढ़ाई के दौरान मैं बिल्कुल जामा मस्जिद के, जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर, सबने देखा होगा जो दिल्ली गए हैं, मैं बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने में रहता था, जस्ट सामने में रहता था। इत्तेफाकन एक दिन, बात मत कीजिए ना यहां पे, पहले जगह बनाना होता आप लोगों को ना, जानते हैं कि आज लोग आएंगे, गुचर किए जा रहे। क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था मैं आप लोगों के सामने कि तकरीबन आज से 5-6 साल पहले की बात है कि एक दिन हम लोगों का मामूल था, आदत थी, हम लोग जितने फ्रेंड्स वहां पर रहते थे एक साथ में, कि हम लोग जब रात का खाना खा लेते, डिनर कर लेते, तो डिनर करने के बाद, खाना खाने के बाद रात को हम लोग घूमने के लिए निकलते थे। खाना खाने के बाद घूमने के लिए निकलते थे। करीब घड़ी में वही 10-10:30 बजा होगा। हम लोग रात को खाना खाए, रात को खाना खाने के लिए मैं था और मेरे उत्तर प्रदेश के 2-3 और साथी थे। वो लोग तो बंगला नहीं समझते पर मैं बंगला समझता हूं, तो हम लोग घूमने के लिए निकले। तो जामा मस्जिद तो उनका दरवाजा तो बंद हो जाता है रात को, लेकिन नीचे में जहां पे वो मार्केट लगता है, वो सब सीढ़ी में 2-4 लोग बैठकर मूढ़ी खा रहे हैं रात के 10:30 बजे। मूढ़ी को क्या बोलते हैं आप लोग? मूढ़ी बोलते हैं। मूढ़ी खा रहे और बंगला जबान में बात कर रहे हैं। मैं समझ गया कि लोग बंगाली हैं, हमारे इलाके के होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हैं, कटिहार में भी लोग बंगला बोलते हैं, उधर के होंगे। तो मैं उनके पास गया और जाने के बाद मैं बैठ गया। तो मैं उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों का घर कहाँ है? तो कहा कि हम लोगों का घर मुर्शिदाबाद है। मैंने कहा मुर्शिदाबाद है? मुर्शिदाबाद कहाँ घर है? तो बोला कि वही धुलियान और फरक्का के आसपास वो शंकरपुर ना क्या के नाम है, उन इलाकों में उनका घर पड़ता है। उसने नाम लिया कि हाँ मेरा उन इलाकों में मेरा घर है। तो मैंने कहा भाई रात के 10:30 बजे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरा पूछना भी फर्ज बनता है, अगर कोई परेशानी में होंगे या कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी या हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं हूं यहाँ पे। तो मैंने इस गर्ज से, इस नियत से मैंने सवाल किया कि भाई रात के 10:30 बजे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। जवाब देते हैं कि भाई साहब हम लोग यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। बोला रिक्शा चलाते हैं दिल्ली में? उस वक्त टोटो नहीं था वहां पे, बहुत कम था। बोला रिक्शा चलाते हैं दिल्ली में।
रिक्शा चला रहा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप रिक्शा चलाते हैं तो 10:30 बजे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चादर बिछा के सब बैठे हुए हैं, जाइए कहीं पर सोइए, रूम में जाइए, या तो फिर रिक्शा चलाइए। बोल रहा कि मौलाना साहब हम लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात में इन्हीं जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर सोता हूँ। दिन भर रिक्शा चलाता हूँ और रात को आकर यहाँ पर सोता हूँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, जो पे बहुत बड़ा बड़ा मच्छर काटता है, बहुत गंदगी है वहां पर, बदबू आ रही है, और उसी सीढ़ी में वो सोया हुआ है। मैंने कहा साहब दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, थकावट आ जाती है, कम से कम एक रूम किराया पे लेकर तो आप लोग 3-4 आदमी रह सकते हैं। उन लोगों ने जवाब दिया, और जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया था। आज भी वो वाकया मुझे याद है। उसने जवाब दिया था, मौलाना साहब अगर किसी रूम को किराया पे लूँ, रेंट पे लूँ और रहूं तो कम से कम 4-5 हजार रुपया किराया देना पड़ेगा। अगर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अगर रात गुजार कर अगर मैंने वही 4-5 हजार रुपया बचा लिया तो इसी पैसा से अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकता हूं, उसका मुस्तकबिल अच्छा बना सकता हूं। ये है बाप, ये बाप है जो अपने बच्चे की परवरिश के खातिर तमाम है सब कुछ वो कुर्बान कर देते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या बाप से मोहब्बत ना करूं? मेरे भाइयों, कुल इनका ना आबा हुक्म, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो आप भी सुनिए, करो। इस्लाम मना नहीं करता है, इस्लाम आपको नहीं रोकता है, बल्कि इस्लाम तो आपको ये तालीम देता है, इस्लाम तो आपको ये शिक्षा देता है कि बाप से मोहब्बत करो, उनके सामने अदब से पेश आओ, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। इस्लाम तो ये तालीम दे रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि कहीं बाप की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा ना हो जाए। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर एक मोमिन को अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत रखनी है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से रखनी है। आइए एक वाक्या मैं आपके सामने रखता हूं कि बाप की मोहब्बत एक जगह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत एक जगह। अब्दुल्ला बिन उबई, सबने नाम सुना होगा। अब्दुल्ला बिन उबई देखने में तो मुसलमान था लेकिन वो बहुत बड़ा मुनाफिक था। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था। उसका एक बेटा था, उसका बेटा का नाम अब्दुल्ला था, वो मुसलमान था। बाप मुनाफिक, बेटा मुसलमान। अब्दुल्ला बिन उबई गज़वा उहुद के मौके पर चंद मुसलमानों को बहला फुसला कर जंग के मैदान से लेकर चले आते हैं और कहते हैं, ओ लोगों सुनो, ओ लोगों सुनो, इज्जत वाला जब मदीने के अंदर जाएगा तो जिल्लत वाला को मदीना से निकाल देगा। यानी अब्दुल्ला बिन उबई खुद को इज्जत वाला कह रहा है और हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील कह रहा है, नबी को गाली दे रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और यही जुमला उसका बेटा अब्दुल्ला के कान पर पड़ जाता है। अब्दुल्ला को पता चल जाता है कि मेरा बाप नबी को गाली दिया है, मेरा बाप नबी की शान में गुस्ताखी किया है। मेरे भाइयों, अब क्या होना था जरा देखिए, साहबा इकराम अल्लाह के नबी से किस तरह मोहब्बत करते थे। जब बेटा को ये पता चला कि मेरा बाप ने नबी को गाली दी है, मेरा बाप ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, क्या करता है, वो मदीने की सरहद पर खड़ा हो जाता है। अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा मदीना की सरहद पर खड़ा हो जाता है और तलवार निकाल लेता है। उसका बाप आता है, बाप से कहता है, अब्बू जान ठहरो, अब्बू जान ठहरो।